Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, here we are studying chapter number 14, perimeter and area. Since we have understood all the concepts related to perimeter and area, we have started solving our exercise. In our previous class, we have solved questions of exercise number 14, question number 1 to 5 we have already solved. So here we are going to solve question number 6 to 10. Children, all these questions are related to word problems. That means we have to understand the question first and then we will find out if we have to find the perimeter, area, side, etc. So let's get started with question number 6 here. Question number 6 is length and width of a rectangular towel are 125 centimeter and 60 centimeter respectively. What will be the perimeter of the towel? बच्चों यहाँ पर एक दिया हुआ है कि हमारे पास एक टावल है, उसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है. लास्ट में पूछा जा रहा है कि उसका पेरीमीटर क्या होगा. देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसकी हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वी आर गिवन विद द लेंथ. लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पर 125 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये जो साइड है ये 125 सेंटीमीटर है. इफ दिस इज द लेंथ एंड इट इज 125 सेंटीमीटर, तो रेक्टेंगल की जो दूसरी साइड की लेंथ होती है वो भी सेम रहेगी. ओके, लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सेम. सो हियर वी कैन सी विड्थ. Width is given to us 60 centimeter. इसका मतलब ये 60 centimeter है. This is the width or you can call it breadth also. If this is 60 centimeter, then the other side is also 60 centimeter. देखिए हमने जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसकी हेल्प से सारे लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है. नाउ यू नो दैट पेरीमीटर इज ऑलवेज द टोटल ऑफ द बाउंड्री. टोटल क्या होगा? सारी लेंथ और ब्रेड्थ हम मिला के जो टोटल कर लेंगे वही होता है पेरीमीटर. सो वी आर गोइंग टू ऐड द टोटल लेंथ एंड ऐड द टोटल ब्रेड्थ, देन वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस टॉवल. लेट्स गेट स्टार्टेड चिल्ड्रन एंड राइट डाउन. सो हियर वी विल राइट डाउन पेरीमीटर of the towel. So you know how we are going to find out. We will add all this. First we will add the length. So 125 centimeter plus 125 centimeter, ये है हमारी length. Now we will add the breadth, that is 60 centimeters, and again we will add 60 centimeters. Okay, this is the length and the width. Now we are going to find the total of all this. So 125 plus 125, let us do the long addition method and find out. First we will add 125 plus 125, this is the length. Now for width we have 60 and 60. So let us add this. Children, at last you can see 5 plus 5 is 10, then 10 plus 0 and 0 is 10 only. So 0 goes here, 1 in the next house. 2 plus 2 is 4, 4 plus 6 is 10, 10 plus 6 is 16, then we will add 1 carry, so we will get here 17. 7 we will write down here and 1 in the next house. So 1 plus 2, then again 1. So here we will get 3. Okay, 1 plus 1 is 3. Here we have got 370. This is the perimeter of this towel. Okay children, here we have solved question number 6. Now let us move on to the next question. Here we have question number 7. A square field needs 260 meter long barbed wire for throughout fencing. Find its one side. बच्चों यहाँ दे रखा है कि एक स्क्वायर फील्ड के लिए हमें टोटल बार्ब्ड वायर कितना चाहिए उसकी फेंसिंग करने के लिए. सो द टोटल लेंथ ऑफ दिस बार्ब्ड वायर इज 260 मीटर. कितना है ये? 260 मीटर्स. अब 260 हमें टोटल दे रखा है, दैट इज इंक्लूडिंग ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर. अब हमें निकालनी है वन साइड ऑफ इट्स स्क्वायर. तो आपको पता है स्क्वायर में टोटल 4 इक्वल साइड्स होती हैं. दीज ऑल आर टोटल 4 इक्वल साइड्स. तो अगर हमें एक साइड का निकालना है, इसका मतलब हम इसे टोटल को 4 से डिवाइड कर देंगे. सो वी विल फाइंड आउट आवर आंसर. लेट अस डिवाइड 260 बाय 4. बच्चों 26 नहीं आता है 4 की टेबल में, 26 से पहले आता है 24. कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में. वी गेट हियर 24. सो नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट. 6 minus 4 is 2, 2 minus 2 is 0. Now we will bring down this 0 here. 20 आता है क्या 4 की टेबल में? Yes, we get it exactly in 5 times.
So here we have done our division and we have got our answer as 65. That means 65, here we have the unit of meter. 65 meter is the length of one side of the square. Okay, here we have solved this question. Now let us move on to next question. Question number 8 here. The length and width of a room floor is 8 meters and 7 meters respectively. In this room, one mat covers the entire floor. Find out the area of this mat. बच्चों यहाँ एक लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है रेक्टेंगुलर रूम की. देखिए यहाँ पर लेंथ हमें दे रखी है 8 मीटर्स. इफ दिस इज 8 मीटर्स, अदर साइड इज ऑल्सो 8 मीटर्स एंड विड्थ वी आर गिवन 7 मीटर्स. ये 7 मीटर है, सो अदर साइड इज ऑल्सो 7 मीटर्स. अब इस रूम में हमें एक मैट लगाना है. इट विल कवर द एंटायर फ्लोर. वो पूरा फ्लोर को कवर करेगी. अब हमें निकालना है इस मैट का टोटल एरिया कितना होगा. चिल्ड्रन, यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर we find out when we have to find for the boundary, but when we have to find out for the internal area, अंदर के पूरे एरिया निकालने के लिए हम एरिया का यूज करते हैं, not the boundary part. तो हम यहाँ पर बाउंड्री का टोटल नहीं करेंगे. Here we will find out for area of this rectangle. So you know the formula of area of rectangle. This is equals to length into breadth. क्या होता है ये? length into breadth हम multiply कर देंगे. बच्चों यहाँ पर लेंथ हमारे पास है 8 और ब्रेड्थ है 7. सो वी विल मल्टीप्लाई 8. 8 7 का क्या होता है? 56. सो दैट इज आवर आंसर. 56 में आप हमेशा यूनिट्स चेक करिए. यहाँ पर मीटर दे रखा है, सो आंसर विल ऑल्सो बी इन मीटर्स. So children, 56 meters is our answer. This is the total area of the mat required to cover the entire floor. Okay. So now let us move on to next question. This is question number 9. Find out the perimeter of a square stool whose side is 60 centimeter. हमें perimeter निकालना है. एक square stool है, ठीक है. उसकी एक साइड हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर से. सो यू नो चिल्ड्रन, स्क्वायर में क्या होता है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. अगर वन साइड इज 60, सो ऑल द अदर साइड्स आर ऑल्सो 60. ठीक है, अगर एक साइड 60 सेंटीमीटर्स है तो बाकी की साइड्स भी 60 सेंटीमीटर्स होगी. अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है. सो यू नो दैट पेरीमीटर इज द टोटल ऑफ ऑल द बाउंड्री, दैट मीन्स ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर हियर. सो वी आर गोइंग टू ऐड इट. पेरीमीटर इज इक्वल्स टू perimeter of a square. यहाँ पर हम ऐड करके लिख देंगे 60 plus 60 plus 60 again 60. That means we are adding 60 4 times. तो बच्चों आपको पता है कि किसी सेम नंबर को हम इतने ही टाइम्स ऐड करेंगे तो उससे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. अंडरस्टैंड हियर, हम 60 को 4 टाइम्स ऐड करें या 60 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट हियर द सेम आंसर. लेट अस चेक. 4 जीरोज़ा होता है 0, 4 सिक्सा इज 24. यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है 24. अब देखिए इसी तरह से आप इसे ऐड भी कर सकते हैं. 60 + 60 + 60 अगेन 60. सो व्हाट डू वी गेट? लास्ट में 0 ही आ जाएगा. 6 + 6 इज 12. 12 + 6 is 18. 18 + 6 is 24. So we are getting the same answer. इसी तरह से आप यहाँ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. नंबर ऑफ साइड्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय द साइड. जितनी हमें साइड दे रखी है उससे नंबर ऑफ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए. हियर वी हैव 4 इक्वल साइड्स. तो जब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, यहाँ भी हमें सेम आंसर मिलेगा. ओके चिल्ड्रन, सो हियर वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. So here our answer is 240 in both the ways. Here we are using centimeters. So answer is also in centimeters, right? Here we have solved this question. Now moving on to the next question. This is question number 10. To take a round of a square field, Dev had to walk 40 meters. Find the side of the square field. बच्चों यहाँ दे रखा है, देव ने एक स्क्वायर फील्ड को पूरा वॉक किया और पूरा वॉक करने पर टोटल कितना वॉक किया है उसने? 40 मीटर्स वॉक किया है. ठीक है, वॉक कितना करेगा? स्क्वायर की बाउंड्री पर करेगा. इसका मतलब हियर वी आर यूजिंग द पेरीमीटर.
टोटल जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 इक्वल साइड्स होती है। लास्ट में पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, मतलब वन साइड इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब किस तरह से निकालेंगे, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। जो टोटल दे रखा है उसको आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ साइड्स आर 4, तो जब हम 40 को 4 से डिवाइड करते हैं वी गेट हियर 10, so children here 10 meters is our answer. Okay, so here we have solved this question and our chapter has also come to an end. Here we have understood all the related concepts of perimeter and area. Children, now it depends upon your practice and your hard work. Now we will meet in the next class where we will start our new chapter. Thank you everyone, keep learning, keep growing.